friends. Today I am discussing the Mendelian genetics. Yesterday I am discussing the introduction to genetics, but today I am discussing the Mendelian genetics. What is Mendelian genetics? The genetic laws related to or discovered by the Mendel is called as the Mendelian genetics. Before going to the discussing the Mendelian genetics, I am discussing a few basic concepts. That is genotype and phenotype. First of all, what is genotype? Genotype what? Genotype is the genetic constitution of an individual is called as genotype. What is genotype? Now genotype का कौन हला? ना genetic constitution, मतलब genetic composition कौन अच्छी पूरे individual में, that is called as genotype. For example, PT for the tall. You were taking the character is tall, तो tall character किमिति, tall character तीन प्रकार है करो, either hyper इमिति or hyper इमिति. This is genotype. This is another genotype. This genotype is called as the homozygous, and this genotype is called the heterozygous. Why? Now, if you consider the allele, both the allele of this genotype is same, that's why it is homozygous. But in this case, both of them is not equal. It's different. One is capital T and the small t. That's why hetero is different. That is called heterozygous. The genotype is, but both have the same phenotype, same physical appearance. That is tall. It's tall plant. Both चाहे ये जीनोटाइप हो कि ये जीनोटाइप हो, both the genotype का physical appearance का कौन है tall. That's right. The phenotype is same, but the genotype is different. One is homozygous dominant, and another is the heterozygous. That's the genotype. The genetic composition केमिति? Genetic composition केमिति ना बड़ा T दिखा है, गोटे बड़ा गोटे छोटे T. This is the genetic composition. This genetic composition of individual is called as genotype. It is called genotype. Then comes the question again. What is phenotype? Phenotype. The phenotype is the physical appearance of an individual. The physical appearance. Physical appearance of the individual is called as physical appearance. केमिति देखिबा physical ता कोटिलिडन ता ग्रीन देखिबा को ना कोटिलिडन ता येलो देखिबा केमिति physical appearance. That is called the phenotype. You are talking about this is one genotype, homozygous genotype, and this is the heterozygous genotype. But both the plant have the phenotype one, that is tall. That is tall. Both the phenotype. Right? So from physical appearance is the phenotype and genetic composition. केमिति genetic composition? बड़ा टी जाएगा ना गोटे छोटे. Genetic केमिति composition देखो. That is called the genotype. And this is the phenotype. Then if you go to the genotypes of different types. The genotype is divided into two main types. जो जीनोटाइप रो वेराइटीज कोन ना जीनोटाइप मे बी होमोजाइगस ना भी हेटेरोजाइगस. होमोजाइगस और मे बी हेटेरोजाइगस. What is the homozygous genotype? Now, if both the allele of a genotype is same, that is called homozygous. If
the allele of the genotype are same, then it is called as homozygous. ଯେତେବେଳେ ଦିଟାଙ୍କ ଆଲିଲି ସେମ୍ ହବ ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା ହୋମୋଜାଇଗସ୍ ହେବେ। Again homozygous can be divided into two types. କଣ ନା homozygous dominant and homozygous recessive. Dominant and homozygous homozygous dominant genotype kano now when the genotype is dominant consists of both the dominant allele that is the homozygous dominant example for example when both the allele are dominant allele then it is called as homozygous dominant. For example, कौन बड़ा मान dominant allele another body dominant allele then it's छोटा डी है छोटे लेटर homozygous recessive genotype है when both the allele are recessive then it is called as homozygous recessive and several genotype. For example, small t because if you consider two allele, this is two allele, so it is the height of height of plant or height of stem height तार दीटा allele गोटा allele हला बड़ टी गोटा हला स्मॉल टी बड़ टी जो डोमिनेंट एला रिसेसिव एटा नेकी कंपोज जीरोटाइप मानिबो कारण दीटा allele तो जीरोटाइप बनबो हेई पारे दीटा को जेंती हेई पारे दीटा को जे allele एमिट हेई पारे दीटा को allele एमिट हेई पारे these two are the homozygous because both of the allele are same. When both allele is same, that is homozygous. When both are different, heterozygous. So homozygous again two types. When both of the allele are dominant allele, then homozygous dominant. When both of the allele are recessive, this is the homozygous recessive genotype. And third part is the heterozygous. So when both the allele of the genotype are different, then it is called heterozygous. For example, multi-small. Hey, this is the genotype versus phenotype. Phenotype is physical appearance. The genotype is genetic composition. For genetic composition, किमिति दीटा इक्वल ना दीटा को अलगा हेटरोजाइगस दीटा इक्वल है होमोजाइगस. पर होमोजाइगस दीटा इक्वल है पर दीटा इक्वल डोमिनेंट है पर दीटा इक्वल रिसेसिव है है होमोजाइगस रिसेसिव टाइप दीटा को डोमिनेंट है होमोजाइगस डोमिनेंट. This is all about the genotype and phenotype means the physical appearance. किमिति देखिए ना এটা হোমোজাইগাস রিসেসিভ এটা হবে এটা কোন হবে ডোয়ার্ফ হবে এটা টল হবে এটা भी টল হবে. ওকে তো এই দুইটা আগ if you have phenotype देखिबा phenotype এই দুইটা আঙ্গর
phenotype is same, that is the tall one. It have a dwarf. This is the physical appearance. Physical appearance. Okay, this all are the genotype and phenotype. Now you should go to the what is dominant and what is recessive. I think I am not explaining that. What is dominant? Dominant versus recessive. As you know, dominant versus recessive. Allele. So I think I am already explaining the what is allele. Allele ta koi dechi. And now I am discussing what is dominant allele and what is recessive allele. And dominant allele versus recessive allele. Dominant allele versus recessive allele. So what is dominant allele? Dominant allele what? What is allele? That is the form of the gene, alternative form of gene which occupy the same gene locus and they control the expression of a gene. गोटे जीन एक्सप्रेशन भी से कौन करे कंट्रोल करे एक्सप्रेशन जीन माने एक्सप्रेशन को कंट्रोल करियो ए सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करियो कंट्रोल सिंगल एक्सप्रेशन ऑफ ए सिंगल कैरेक्टर दैट इज कॉल्ड एलील यदि हमें एलील वाटर प्लस एलील टाइप्स द टाइप्स ऑफ एलील दैट इज द यू कैन डिस्कस द हेडिंग दैट द टाइप्स ऑफ एलील एल डिस्कशन बोला जाता है टाइप्स ऑफ एलील डोमिनेंट एलील डोमिनेंट क्या द एलील द बेस्ट एक्सप्रेशन द एलील व्हिच एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस करियो आज करियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जे मोनोहाइब्रिड करा प्रथम जो जनरेशन पैरेंटल जनरेशन पर जो फर्स्ट जनरेशन दैट इज द फर्स्ट फिलियल जनरेशन F1 जनरेशन तो F1 जनरेशन ने जो कैरेक्टरटा एक्सप्रेस होबो दैट इज डोमिनेंट एंड द कैरेक्टर व्हिच फेल टू एक्सप्रेस इन डोमिनेंट माने इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड द रिसेसिव एलील तो एलील is expressed in F1 generation. It expressed itself, right? Itself in F1 generation is called as dominant allele. देखो हमें dominant जो एलीलटा F1 जनरेशन निजे को निजे एक्सप्रेस करि परिबो त डोमिनेंट एलील कहबा एग्जांपल हम मने वाला इमीडिएटली प्योर पेरेंट का सदार प्योर लाइन दिया ऑलवेज द पेरेंट इज प्योर लाइन इट्स नेवर इम्प्योर काइंड प्योर लाइन किबि थेजी बाय रिपीटेड सेल्फिंग माने रिपीटेड इनब्रीडिंग कराइ माने निज अलाइड भीतर कर एक्सपांड मेटिंग करी बा पॉलिनेशन करी पूरा pure variety. So what is the meaning of pure varieties? Now the varieties give its the character of the offspring which give to the parents which gives the same type of offspring. That is called pure lines. जो the parent जिमिति माने बापा माँ जिमिति जब छुआटा से बड़ा है तो called pure lines. Exact ditto. That called pure lines. जहाँ parent का character थी वो अच्छे से आने. Not different character. अब the different character आएगा then this is impure breed and that is called hybridization and hybrid characters आएंगे तो it is pure line देखो पूरा complete tall and tall hybrid नहीं allele dita का same pure line is dita का allele both allele same homozygous so exactly that means it is homozygous no heterozygous condition है ना hybrid है तो it is homozygous एरा homozygous tall and homozygous dwarf ये dwarf और homozygous here that means the if the generation is only the homozygous condition pure language only homozygous and that gives to the offspring what the parent character and parent jaha character thibo the same character offspring ଆସିବ that line is called the pure line same parent का भी pure line कहबा जो pure line ने जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा ऑप्शनल कैरेक्टर पैरेंटल कैरेक्टर तो समान होगा दैट इज प्योर लाइन इम्प्योरिटी नहीं इम्प्योरिटी क्या सिला है अब प्योर लाइन ऑब्टेन हैला कि सृष्टि हैला कि बाय रिपीटेड सेल्फिंग by
বা সেলফ পলিনেশন দ্বারা কোন হলা পিওর লাইন আসলা ওকে ধরো এটা দেখো গ্যামেট ফর্মেশন করে কইয়ে আপনার আপনার আচ্ছা তাহলে তো গ্যামেট ফার্টিলাইজেশন হলা ফার্টিলাইজেশন ক্রস দিয়ে দাও ক্রস মানে ডিএনএ ক্রসিং হলা ये मिश्रा जाइगोट फॉर्मेशन जाइगोट सीड जाइगोट रिपीटेड माइटोसिस हला एक করে সিড হলা সে সিডটা গছর মাটির মধ্যে বসে করে গছ হলা সেই গছটা কোনটি F1 প্লান্ট তার সিড হলো F1 সিড হ্যাঁ ধরো এটা F1 প্লান্ট দিছে F1 জেনারেশন হ্যাঁ F1 জেনারেশন দিস ইজ দ্য প্যারেন্টাল জেনারেশন কি জেনারেশন প্রিজেনারেশন এই সেলফিক কলা মধ্যে যদি কিছু ইম্পিউরিড ভ্যারাইটি আসছলা সেটাকে বাইকাট করে কাঢ়ি বুঝলে দ্যাট ইজ অলসো ড্রব্যাক ফ্রম মানে মেডেনাল ড্রব্যাক কেন ইনকমপ্লিট ডোমিনেন্ট বলে বলে রেড এন্ড হোয়াইট ভিতরে পিঙ্ক কালার করে আসলা এই পিঙ্ক কালার করে আসলা সেটা কি করবে রাইট ডিফারেন্ট ভ্যারাইটি আছে তাহলে আমি পিওর লাইন দেব কেবল পিওর রেড হোয়াইট ওনলি রেড হোয়াইট নো পিঙ্ক পিঙ্কটা ডিসকার্ডেড যদি পিঙ্ক আসলা তাহলে ডিসকার্ডেড করে দিতে সো দ্যাট দে মেইনটেইন দ্য পিওর লাইন সেই পাশে পিওর লাইন মেইনটেইন করে করতে তো এটা পিওর লাইন প্যারেন্টাল জেনেসিস প্রিজেনেরেশন তারপর গ্যামেট বলে গ্যামেটোজেনেসিস এটা কোন গ্যামেটোজেনেসিস গ্যামেটোজেনেসিস হলো গ্যামেটস ফর্মেশন অফ দিস গ্যামেটস জেনেটিক গ্যামেটস দাদা মাইটোসিস মেয়োসিস হ্যাঁ তো গ্যামেটোজেনেসিস না মেয়োসিস হলো আপলোড হয়ে গেল আপলোড করে ফার্টিলাইজেশন হলো দিস ফার্টিলাইজেশন তারপরে জাইগোট ফর্মেশন হলো জাইগোট এরপর ফর্মেশন হলো হ্যাঁ তো সি ডেভেলপ হলো फिर सीड প্রতিলে প্লান্ট দিস ইজ F1 জেনারেশন F1 জেনারেশন হলো হাইব্রিড আছে দিস হাইব্রিড F1 hybrid is also called F1 hybrid. F1 hybrid because this is not pure line. It is hybrid. Heterozygous. Heterozygous means hybrid. Hybrid is not. तो ये भी कौन ला? एक जगह ले plant कौन होगा? Tall होगा. This is the allele. This is the allele of tall character. This is the allele of dwarf. It both the allele of the plant color stem height. Stem height টা পাই এটা হচ্ছে ক্যারেক্টার স্টেম হাইট এটা হলো টল ক্যারেক্টার এটা হলো ডোয়ার্ফ ক্যারেক্টার বা ডোয়ার্ফ ভ্যারাইটি ক্যারেক্টার কোন লেখা এটা টল ভ্যারাইটি এক্স্যাক্টলি মানে এক্স্যাক্ট টল মিন্স দ্যাট ক্যারেক্টার গুলো ভুলে যাও তো ক্যারেক্টার তো বলতে দিস ইজ টল ভ্যারাইটি মানে ক্যারেক্টার जो ভ্যারাইটি जो सब स्पेसिस जो ভ্যারাইটি হ্যাঁ ডোয়ার্ফ ভ্যারাইটি আমরা जो रेस ह्यूमन रेस করতে ভ্যারাইটিজ দ্যাট ইজ ভ্যারাইটিজ निग्रो वेराइटीज कॉकसेट वेराइटीज हैं तो ये टॉल वेराइटीज है ड्वार्फ वेराइटीज तो दी के वेराइटीज আছে তো टॉल वेराइटीज অফ বড়টি এন্ড টল এন্ড আই মানে এই দুইয়ের ভিতরে যদি কম্পারিজন করা टॉल ইজ ডমিন্যান্ট ওভার ड्वार्फ মানে टॉल যদি কম্পেয়ার করা टॉलটা ইজ ডমিন্যান্ট ड्वार्फ হলো রিসিসিভ ड्वार्फ इज রিসিসিভ देखो बहुत गुड़े कुकुर पड़े से गुड़े गां गुड़े कुकुर धर मन मारी दिवा गुड़े गां इट इज एनिमल बिहेवियर गुड़े गां मारी दिवा सो चारि और आठ कुकुर देखो कुकुर दुटी जो मतलब बिजुली वगैरह कुकुर दुटी जो चार कुकुर दुटी तो कोई कम गुड़े ऐसा काम नहीं तो कि विषय बोल गया कुकुर टारगेट करके दुटी रोड जाए पूरा अटैक করে সমস্ত ডেই করে দাও সি বলা দাঁত তো দিয়ে করে নাগুড়ি চাটি দিয়ে নিচে দাও মানে সারেন্ডার করে হ্যাঁ রিসিসিভ মানে সাথে তো রিসিসিভ হয়ে গেল মানে ফেল টু এক্সপ্রেস যদি তা করা মানে তা নিচে হয়ে যায় না সেই যে কুকুর চাকরি বসছে তারপরে সে জমা দেয় না তাই এরিয়া গেলে হ্যাঁ কারণ তাই না ডমিনেন্ট অল এরিয়া বসে গেলে রিসিসিভ তো রিসিসিভ এক্সপ্রেস করে পারেন এই নিজের যে ফিনোটাইপ ক্যারেক্টারটা এক্সপ্রেস করে পারেন মানে সে सबमिसिव है दैट एग्जैक्ट वर्ड इज सबमिसिव হয়ে গেল হ্যাঁ এক্সপ্রেশন করি পারে কাহা গরে টল আগে তো টল ভ্যারাইটি প্যান্টার টল ভ্যারাইটি ছিল তো কোড আলি এক্সপ্রেস হলা টলটা বার বলে तो कैरेक्टर বা ভ্যারাইটি যদি ডেভেলপ F1 এ যেটা ডেভেলপ হলো সেটা হচ্ছে ডমিনেন্ট ক্যারেক্টারস
The character is felt to express that the recessive character. The dominant character, recessive character कौन लिखा? Take this out. Recessive. Allele. Is felt to express itself in F1 generation. Or recessive. तो देखो recessive allele. तो जे F1 जनरेशन है ही पहला ने समिशन हेगला बट फेल कला एटा को recessive कहला आउ जे फेल न होई कि एक्सप्रेस हला तानि देबा डोमिनेंट बट जे नॉन डोमिनेंट जनरेशन पढिबा किछि कहबे गले नॉन डोमिनेंट डिपेंडेंट गले भाई यस और नो आइदर हां नॉट नो गुंगु नाही मने हां सर कहबी देखिबी आसीबी करबी इट्स नॉट लाइक दैट यस और नो मेंटल कॉन्सेप्ट यस और नो आइदर टॉल नॉले ड्वार्फ मजा मजी किछि ना आइदर रेड प्लांट नॉन व्हाइट प्लांट माने सॉरी रेड फ्लावर किबा व्हाइट फ्लावर नो इन बिटवीन कि नॉन डोमिनेंट जनरेशन अरे भाई किछि डेवलप होता भितरे दैट इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो डोमिनेंस कोन करछि हां कंप्लीट डोमिनेंस करि पर एडी कंप्लीट डोमिनेंस करछ बोले टॉल वैरायटी जैसा द्वार वेरिएंट डेवलप करा किंतु कोन हबो किछि नॉन माने इनकम्प्लीट डोमिनेंस करे जो डोमिनेंट एलीली रिसेसिव एलीली को किछि मात्रा रे कोन करिवो माने कंप्लीट डोमिनेंस करि परिबो कंप्लीट ताको ता एक्सप्रेशन म करि परिबो किछि मात्रा रे रिसेसिव एक्सप्रेशन करिवो सो दैट कोन हबो ना रेड किछि व्हाइट किछि मिसी के पिंक हेबो तो पिंक फ्लावर्स ना दैट कांसेप्ट इज कॉल्ड द नॉन डोमिनेंट जनरेट दैट इनकम्प्लीट डोमिनेंस आउ किछि अछि को डोमिनेंस सेकला भाई टीवी डेवलप करे एलीली डेवलप हबो ये भी डेवलप करिवो को डोमिनेंस को माने संगे संगे तला धर ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप ए ओ जो ब्लड ग्रुप पड़े डिटेल्स भाई इंटरेस्टिंग दिस ओ ब्लड ग्रुप का ये बोला तो ए ब्लड ग्रुप का ए ब्लड ग्रुप दिस इज ओ दिस इज ए दिस इज ए दिस इज बी दिस इज बी एंड दिस इज एबी चारटा ब्लड ग्रुप ओ ए बी एंड ए बी ओ रे कोन एटा पूरा रिसेसिव एटा ओटा बा रिसेसिव काहे कि ना रिसेसिव कैरेक्टर विल एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन द रिसेसिव कैरेक्टर वाला द रिसेसिव एलिमेंट लिखियो द रिसेसिव express itself only in homozygous condition माने बुझबेले नै को कहली कोन कहली ना homozygous recessive allele express itself only in homozygous condition केतबे दीटा का homozygous दीटा के सेम रहबो यही केस से केवल ड्वार्फ है तो ड्वार्फ कैरेक्टर ता ओनली एक्सप्रेस हो जते बड़ा ये दीटा का रिसेसिव हो से पे इनब्रीडिंग केस ता इनब्रीडिंग बा जो सेल माने पाखा पाखी वंशज भीतर मैरिज हेले प्रॉब्लम हो काहे कि ना डेवलप करि पाइबा प्योर वैरायटी इनब्रीडिंग हो प्योर वैरायटी जैसे प्योर वैरायटी असले डिजीज बहुत बड़ा जो माने डिजीज बड़ा दबी की रही तो एक्सप्रेस हो बाहर जो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस पढ़ाई विद्या लिखले सेक्स लिंक इनहेरिटेंस बहुत बड़ा डिजीज हो सेक्स रिलेटेड डिजीज एक्स माने सेक्स डिजीज माने सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड एक्स क्रोमोसोम बा वाई क्रोमोसोम रिलेटेड डिजीज बा एक्सप्रेशन दे दिबो बड़ा कोन बा बहुत बड़ा कोन तमरो ऑटोजोमल एंड सेक्स कोन प्रकार अछि ऑटोजोमल बहुत बड़ा कोन बा रिसेसिव कंडीशन एक्सप्रेशन करू इटा देखो जेता रिसेसिव कंडीशन आसला रिसेसिव जीन विल एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन तो होमोजाइगस जेता पाइबो सेता बड़ा एक्सप्रेशन बट अदरवाइज देखा तो नहीं 80 टोटल किंतु 80 से टॉल है तो डोमिनेंट माने हेटेरोजाइगस कंडीशन है से एक्सप्रेशन फेल्ड टू एक्सप्रेस इन होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कंडीशन काहे डोमिनेंट जीन है जेपर जो डोमिनेंट अछि से पूरा चुपचाप होई गइतो जीपीटी दौड़िबो देखो कुकुरटा दौड़िबो जीपी देखो ता एरिया आसी गला पछु बुली करो किए पहुंच गेल को एरिया बुली न ने वाया पर सिंह बळे आने
ମାନେ କୁକୁର ଜାକି ନାଙ୍ଗୁର ଜାକି ଜାକି ଦୌଡୁଥିବ ଯେମିତି ତା ଏରିଆ ତା ବାଉଣ୍ଡରୀ ଟଚ୍ କରିବ ଟେରିଟୋରିଆଲ ଏରିଆ ତାକୁ ଟେରିଟୋରିଆଲ କହିବ ହଁ ଯେମିତି ଯୋଉ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଟଚିଂ କରିବ ତା ସୀମା ଯେମିତି ଟଚ୍ କରିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୁଲିର ସିଂହ ଭଳିଆ ହବ କୁଆଡା ହବ ତେଣୁ ଇଏ କୁକୁର ଦୌଡୁଥିବ ଯେମିତି ଦେଖିବ ତାକୁ ଏରିଆ ଆସିଲା ସିଏ ଦୌଡ଼ିବା ବନ୍ଦ କରିବେ ଦିସ୍ ଇଜ ଟେରିଟୋରିଆଲ ତେଣୁ ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଯେମିତି ସଫିସିଏଣ୍ଟ କେତେ ବୁଝିବ ଯେତେବେଳେ ଡୋମିନାଣ୍ଟ ଅଛି ଯେମିତି ଡୋମିନାଣ୍ଟ ହଟିବ ମାନେ ତାର ହୋମୋଜାଇଗସ୍ କଣ୍ଡିସନ ପଳେଇ ଆସିବ ଦେନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ସିଂହ ଆପଣ ଏରିଆରେ अपना गली में कुत्ता भी सेल हां ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ପୁରା ଏମିତି ପଳେଇ ଆସିଲା ବାସ୍ ତା ଏରିଆ ସେ ଡେଭଲପ କରିବ ତେଣୁ ଦ ରିସିସିଭ୍ ଆଲି ଏକ୍ସପ୍ରେସ itself only in homozygous condition କେବଳ homozygous condition ହିଁ ସେ ନିଜେ ନିଜେ express କରିବ but in all other cases it fail to express other cases ତ ନାହିଁ ଏଠି ତ ନାହିଁ ଟୋଟାଲି but heterozygous condition ସେ fail to express that is the recessive condition ତ ଏଠି express କଲା ଦେଖ सेम condition प्लस करছি ये रिसीसिव तो ओ ब्लड ग्रुप है रिसीसिव ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप है रिसीसिव ब्लड ग्रुप बट इट ए ओ अछि ओडा रिसीसिव बंद हैगला ए एक्सप्रेशन ना हेटेरोजाइगस कंडीशंस ये तो बीटा का डोमिनेंट अछि एक्सप्रेशन ये रिसीसिव कंडीशन बी एक्सप्रेशन ये बीटा का डोमिनेंट हैला बट इन दिस केस दैट ये भी डोमिनेंट ये भी जड़े आप कहजती बट अकॉर्डिंग टू इंटरेस्टिंग देखो केते इंटरेस्टिंग बारी बात दे माने केते इंटरेस्टिंग देखो माने कोन हो ना मेंटल कहले भाई प्रत्येक कैरेक्टर केवल दीटा एलिली अछि टू एलिली कांसेप्ट मेंटल कहले टू एलिली कांसेप्ट बट द मल्टीपल एलिली केस इज द एक्सेप्शन टू मेंटल एलिली मेंटल कहले भाई हर जहां भी कैरेक्टर हो जहां भी चीज हो हर बिकॉज़ वी आर डिप्लॉयड हम डिप्लॉयड तो हमर केते रहबो दीटा को हर चीज दीटा को रहबो Mendel, according to Mendel, there is a two allele concept, and one allele dominant and another is recessive. That condition. But non-dominant genetics no, not like that. You are taking the example of ABO blood group. ABO blood group. A, B, O. And gote allele la A by, gote allele la B by, gote allele la O by. So it is a case of multiple allele. Which is the exception to Mendel genetics. Mendel genetics exception है ना. यानी ये तीन देखो ये गोटी दिन से कितने बड़ा एक्सप्लेन करा नॉन मेंडल जेनेटिक्स में चला भाई ये मल्टीपल एलिली बट अकॉर्डिंग टू मेंडल इज टू एलिली कांसेप्ट तो मेंडल कहले भाई दीटा एलिली बिकॉज़ ह्यूमन बा ह्यूमन बा देखो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स द डिप्लॉयड मींस टू एलिली दीटा एलिली हो बट आप देखो एबियो ब्लड होते तीन एलिली करे किंतु दीटा कंडीशन तो देखो सब जगह दीटा रहउची डिप्लॉयड में दीटा रहइबो किंतु माने टोटल पॉपुलेशन को स्टडी करिवा এই পারে ইমিডিয়েটলি থাই ও এই পারে এ ও হই পারে এই পারে বি ও হই পারে এই পারে এ এ হই পারে এই পারে বি বি হই পারে বা হই পারে এ ও বি দিস ইজ দ্য কন্ডিশন which is possible in the population total population এভাবে কন্ডিশন পসিবল তো আলিলি দেখিবা কেতটা আলিলি হেগলা This is one allele. This is another allele and this is another. But among these three allele, this is the recessive allele. This is recessive allele. This is dominant. This is dominant. ये dominant allele, ये dominant allele, ये recessive. तो ये theta का dominant. तो ये ABO blood group में theta का dominant. So both will express. So this is the example of codominance. But there is no codominant concept in the मेंडल का भाई गोटे डोमिनेंट होगा गोटे रिसीसिव होगा ता छडा किछि नै वन इज डोमिनेंट अनदर इज रिसीसिव देयर इज नो केस ऑफ द कोडोमिनेंस तो कोडोमिनेंस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन डोमिनेंट जेनेटिक्स इज क्लासिकल जेनेटिक्स बट इज नॉन डोमिनेंट जेनेटिक्स मेंडल का भाई गोटे डोमिनेंट रहबे गोटे रिसीसिव रहइबो आउरे कोन हला ना इट मल्टीपल एलिली केस व्हिच इज नॉन डोमिनेंट कांसेप्ट मेंडल का भाई दीटा एलिली रहइबो ये किंतु तीनटा एलिली रहला इट इज एन एक्सेप्शनल टू मेंडल जेनेटिक्स It is classical genetics, but it is the non-dominant genetics. कथा धरि परते केते इंटरेस्टिंग जिंस देखो माने सेकर दुईटा एलिल लेबो मेंटल के भाई हर दिन सर दुईटा एलिल लेबो दुईटा एलिल बिकॉज़ ऑल आर द डिप्लॉयड सेटा दुईटा एलिल लेबो दुईटा एलिल लोजी आ सब दिन दुईटा एलिल लोजी किंतु टोटल पॉपुलेशन जे स्टडी करबा पॉपुलेशन में केवल दुईटा नो मल्टीपल एलिल यूज दैट्स मल्टीपल एलिल एक्सिस्टेंट टू मेंटल genetics then condition of complete dominance complete recessive. But in the case, sometimes the case also arises the incomplete dominance.
माने रिसीसिव टा 0 ही माने एक्सप्रेशन है 30% 40% एक्सप्रेशन हो 30-40% है रिसीसिव टा एक्सप्रेशन है कि नहीं जो पे पिंक कलर आसा रेड एंड व्हाइट भितर से ताकने तो भाई रेड आसो ना पिंक आसो नो मिक्सिंग फिर मिक्सिंग आसो वैरायटी पिंक कलर आसो दैट्स द इनकम्प्लीट डोमिनेंस कोडोमिनेंस बुझी गलो इनकम्प्लीट डोमिनेंस बुझलो आउ मल्टीपुलारिटी तो मल्टीपुलारिटी इज आल्सो नॉट मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट मल्टीपुलर नॉट मेंटेनेंस कोडोमिनेंस मोडे इनकम्प्लीट डोमिनेंस आल्सो नॉन मेंटेनेंस तर बराबर दिस द ड्रॉबैक्स of the maintenance is the drawbacks होगा बराबर रिसीसिव माने जोटा एक्सप्रेशन हबो एफर में से होची डोमिनेंट जे हेड टू एक्सप्रेशन से होची रिसीसिव ये करे मेंटेन तो कंप्लीट डोमिनेंस कंप्लीट रिसीसिव नो क्वेश्चन ऑफ इन बिटवीन दिस इज द मेंटेनेंस आउटे कंडीशन वाला एपिस्टासिस कंडीशन दिस इज अ नॉन मेंटेनेंस से कोची जे सदाबडा एलीली जो जीन ता एलीली केसे माने गोटे एलीली गोटे पेयर ऑफ एलीली कंट्रोल वन कैरेक्टर से तो ना भाई एमि देई परबो न इमिति दीटा पेयर ऑफ एलीली गोटे कैरेक्टर कंसीडर करतो दीटा पेयर ऑफ एलीली दैट आल्सो कंट्रोल द सिंगल कैरेक्टर्स दे बिहेव लाइक वन पेयर एलीली बिहेव लाइक सिंगल एलीली माने मेंडलेव से कंपैरिजन करले कोन हबो से ये पेयर ऑफ एलीलीटा से गोटे एलीली उरा काम करबो आउ पेयर ऑफ एलीलीटा आउ गोटे पेयर माने गोटे एलीली उरा काम करबो सो दैट दे टुगेदरली कंट्रोल द सिंगल कैरेक्टर्स किंतु एक्चुअली मेंडल से स्टडी करे इट इज वन एलीली पेयर इट इज अनदर एलीली पेयर एंड टू एलीली पेयर है टू कैरेक्टर कंट्रोल करे हां आउ सेति भी डोमिनेंट एंड रिसीसिव कंडीशन आसीबो तेनु को करे गोटे जीन पेयर बा वन एलीली पेयर मास्किंग द इफेक्ट ऑफ another allele pair just like recessive and dominant but actually they are not allele pair they are non allelic pair interactions and it is one allele adre dharo ko ei bhagor t b e allele pair ba motre ei allele pair to our ye gore allele pair ba temne karo boda ba small ye our allele pair to ye ko hoche acronymic ye round korche ye ko je call korche dita character they are two different character but मेंडल पहला ही नॉन मेंडल कुछ भाई कौन ना ये और ये मिसी की गोटे धरा कहलो कॉन्टिनेंटल कलर और कलर उधर कौन करता तो ये गोटे एलीली भलिया बिहेव करती ये गोटे एलीली भलिया बिहेव करती बट दीज आर द नॉन एलीलिक पेयर ये कौन ये दीज आर मिसी गोटे एलीली पेयर ये जो आउट एलीली पेयर दिस इज नॉन एलीलिक इंटरेक्शंस नबी माने आर आर आउट टी टी এটা এলিলি এই দুটো পরস্পর এলিলি নো एलीली के ना बड़ आर छोटो आर एलीली बा बड़टी छोटटी रो एलीली किंतु एटा ये अलग एलीली ये अलग एलीली ये अलग एलीली बट नॉन एलीलिक इंटरेक्शंस दैट्स नॉन एलीलिक इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज द एपिस्टासिस सेटा को एपिस्टासिस का नॉन एलीलिक इंटरेक्शन माने मेनल भले कोन मेनल नो एलीलिक इंटरेक्शन को बुझे ना जने डोमिनेंट हो जने रिसीसिव हो ये नॉन एलीलिक नो हो किंतु एलीली भले काम बिहेव करछु किमिति ना जेमिति एलीली गोटे डोमिनेंट जो रिसीसिव होची आ भितरु गोटे कैरेक्टरटा माने गोटे जीन कोन करिवो सप्रेसिव हे जिवो आ गोटे जीन कोन हबो कंट्रोल हबो डोमिनेंट होडा काम करे सेई जो राउंड प्रोडक्ट डोमिनेंट ना एटा कोन एग्जांपल लिखेली तार केस अलगा अछि तार केस नाम से केस तार चीज देखे हां तर बिहार सेटा ही मेनली मेडिकल इंटरेस्ट मेनली मेडिकल से एपिस्टासिस का मैक्सिमम टाइम होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस पर एक्सेप्शनल जेनेटिक्स नहीं पकाए माने एंट्रेंस जो मेडिकल एंट्रेंस पकेबो मेनली से इनकम्प्लीट डोमिनेंस कोडोमिनेंस एपिस्टासिस मल्टीपल एलीलिक केस दिस आस्किंग दिस क्वेश्चन आस्किंग काई ए सोरा भलो पिला बुझि पाबने भाई आप एक्सप्लेन लिखो तो बुझो दिन छरा कोन के एक्सेप्शनल है यू शुड क्लैरिटी फंडामेंटल कांसेप्ट क्लैरिटी हो छरा ना ए बात है ना वो एग्जांपल दन राउंड एंड टॉल एंड नॉट नॉलेज मतलब कोन एग्जांपल तुम एने दिस जानि छ तो पण जणा भितर ओजाण गुण बार हां माने एवा नॉन एलीलिक पेयर इंटरेक्शंस द नॉन एलीलिक पेयर इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज एपिस्टासिस epistasis hypostasis supplementary gene complementary genes these are the genes associated with variables así que no तार expression gene का these are the non pair it's interesting माने एटा आउट कैरेक्टर एटा आउट कैरेक्टर हमें जानि जे डबल कैरेक्टर रे डाइहाइब्रिड क्रॉस डाइहाइब्रिड रेशियो कोन ना 9:3:1
9:3:3:1 this is the whole ratio eta dihybrid ratio dihybrid कोन dihybrid phenotypic ratio ना तो ये जो एपिस्टासिस जो देखेबो जो रेशियो सेटा डाइहाइब्रिड रेशियो देता डाइहाइब्रिड अकॉर्डिंग टू मेंडल कोन हला तो दीटा कैरेक्टर कंट्रोल करछ किंतु एक्चुअली दी जन मिसी गोटे कैरेक्टर कंट्रोल करछ तो देखिए डिटेल एक्सप्लेन करछ तो बुझियो डोमिनेंट रिसेसिव वाली कंडीशन सारे अंडरस्टैंड दिस थिंग्स इट अबाउट इट्स नेवर एक्सप्रेस इन द still now what are discussing what is allele first yesterday class we discussed what is allele and then we are discussing then find out what are the types of allele what are types of allele we are discussing we find out the two types of allele dominant allele and recessive allele that means the allele which express in F1 generation is called as dominant and the allele which is not which fail to express in F1 is called as recessive then next question मतलब ना what is genotype and then further what are the types of genotype what is genotype the genetic composition of the individual is or characters or trait is called as genotype and then next question what are the types of genotype the type of genotype is genotype with what is homozygous genotype then heterozygous phenotype homozygous phenotype what when both alleles tt small d right the heterotype no both alleles different example body t छोटा t is heterozygous again homozygous genotype is again divided into two types dominant and dominant माने homozygous dominant genotype homozygous recessive genotype homozygous genotype असला body t homozygous dominant and homozygous recessive असला small t small then heterozygous when both the allele are different that is the heterozygous still now I am discussing this and aerobics also I am discussing what is but if you now the physical appearance of an individual or the physical appearance of a character what a character physical appearance can be that is called the phenotype eta kama phenotype with this understanding now I am switch over to the Mendelian genetics Mendelian genetics hame I think now this division this possible concept and doubts lots of Mendelian genetics को देखिबा ना मेंडेल जो काम करथिले से प्रथमे 34 टा कैरेक्टर पे काम करथिले प्रथम इट स्टार्ट्स एक्सपेरिमेंट वर्क on the 34 different characters but gradually that decrease that number of character per consideration experiment there is 22 then 22 ता डिक्रीज कर देले कारण 34 रे बहुत हुए पागल है तापर ताको डिक्रीज करी 22 करे फिर ताको 22 को डिक्रीज करी फाइनली his performance expanded only on 7 different characters. Finally, Mendel worked on phylum Saphiron by considering 7 different seven different characters सातटा different character नेकी काम करथि सातटा different character माने केतरा variety आसीबो 14 variety आसीबो
यानी 7 डिफरेंट कैरेक्टर है। ना प्रत्येक कैरेक्टर तीनटा वैराइटीज, दैट इज द 14 वैराइटीज। 14 वैराइटीज कौन कौन से वैराइटीज थिला? प्रथम आसीबो द पोजीशन ऑफ द फ्लावर, एटा बे कैरेक्टर और सातटा कैरेक्टर এবং তার ডোমিনেন্ট রিসিসিভ পাইবা। पोजीशन पोजीशन ऑफ फ्लावर को पोजीशन ना हमें देखो यदि हम देखो दी जिनसडा प्लांट रे कोन दे आइदर टर्मिनल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन। व्हाट इज टर्मिनल पोजीशन, व्हाट इज एक्सियल पोजीशन? जब प्लांट के एवा देखि कि दिबा तो अगर यदि फुल टाइप दे देबा होला दैट इज द टर्मिनल, दैट इज द टर्मिनल। एक्सियल को ना ए यदि केंद्र का यदि बाला यदि फुल टाइप डेवलप होला that is the axial, it is the axial or terminal top रो जोड़ा रहेगा that is axial। तो terminal axial लो which is dominant and which is recessive किसी ने कहा हाँ dominant केस रहा right is terminal is the terminal axial बटन निकाल दो बटन निकाल दो। So Mendel finally do his work by finally considering the 7. But starting it's 34, then 22, then finally reach to the 7 characters. And 7 characters means the 14 different varieties. Can you imagine? For character have 2 varieties, and 2 contrasting characters, contrast and opposite characters. Opposite character means axial से terminal. These characters are flowers, seed, pod and stem. So flower over 3 character total है flower position. The flower position may be axial, may be terminal. जो axial condition देगी, axial कौन होगा? ये देगी जो ना top पर जुड़ा हुआ, जो flower जुड़ा axial इधर भी torsion, terminal. This is axial. Now axial is dominant and terminal is this. Then come to flower color. Flower color violet and white. So violet is the dominant color and white is the, because violet में pigment is there, white में no pigment, pigment नहीं, pigment नॉक्सिया तो white होगा। और जो पिगमेंट अच्छी ना भायोलेट बैगनी एवं धोबा रवि फ्लावर ऊपर दिखा था तापर ऐसा सीड ऊपर सीड जो कलर ना येलो एंड ग्रीन माने जो मटर ग्रीन मटर आउ हळदिया मटर ग्रे कलर नो दैट इज द सीड कलर येलो एंड ग्रीन तो ग्रीन मटर आउ येलो मटर जो मटर तापर तो सीड शेप हे जो पूरा फुल पूरा गोल साइज है जो किबा कॉन्स्टेंट रिंकल है कुछ है जो तो सेटा राउंड एंड रिंकल, राउंड इज द डोमिनेंट, रिंकल इज द रिसेसिव एंड द सीड कलर येलो टा डोमिनेंट, ग्रीन टा रिसेसिव। देन कम द पॉड माने मटर छुई जो छुई टा सेटा कोन पॉड कहंदी। तो छुई रे कोन हो ना पॉड कलर सब मटर छुई हमर जनरल कोन ग्रीन कलर ग्रीन, तो ग्रीन कलर डोमिनेंट, येलो इज रिसेसिव। देन पॉड रा शेप देखिबा, शेप टा इन्फ्लेटेड आउ कंस्ट्रिक्टेड किछि मो किबो त मनी गुला छोटे छोटा एकदम छोटे छोटा मनी फ्लैट गुला हेइबो आउ पोटा को बंका तडा बडा हेइबो माने बंकी हेइबो तडा कंस्ट्रिक्टेड एटा इज इन्फ्लेटेड। द फाइनल द लास्ट कैरेक्टर इज द स्टेम हाइट, दैट इज द tall and dwarf. Tall is the dominant and dwarf is the recessive. This is the Mendel in his experimental work considered the 7 different character and 7 different character of the 7 into 2, that is the 14 varieties. And Mendel performed his experiment in 3 different stages. 3 different stages रे से ताको काम करथिले। मु बिब्लियोग्राफी के परे कहबी ताको विषय रे। I am talking about the Mendel performed his experiment in 3 different stages. Mendel experimental work in 3 stages. What is it in the stages? Stage 1 what? Selection of pure breed.
और प्योर लाइन पैरेंट प्लांट कहीं ना प्रथम कोन हम एक्सपेरिमेंट करथले मन होइबे देखो प्रथम कला पैरेंट पी जनरेशन प्रथम है पी जनरेशन तापर है F1 जनरेशन तापर है F2 जनरेशन इन जनरल तापर F3 जनरेशन भी अछि पर इन जनरल वी आर कॉलिंग दिस थ्री मोनो हाइब्रिड बा डाई हाइब्रिड हो बेस दीटा क्रॉस एक्सपेरिमेंट करथिले गोटे मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट करथिले डाई हाइब्रिड और सेही जब से ताकर तीनटा कंक्लूजन देथिले तेनु कोन करे ना पी जनरेशन प्रथम पैरेंट जनरेशन तो पैरेंट शुड बी वेरी प्योर और प्रथम को बतरा ना सिलेक्शन ऑफ प्योर ब्रीड प्लांट्स की प्लांट पैरेंट प्लांट जो पैरेंटल प्लांट दैट शुड बी प्योर ब्रीड व्हाट डज बी प्योर ब्रीड ना ताको दियो प्योर ब्रीड प्लांट पैरेंटल प्लांट सदा बेले जो असली प्लांट आसीबो दे आर ऑलवेज माने हैविंग कैरेक्टर्स ऑफ द पैरेंटल प्लांट कैरेक्टर्स रहिबो सेटा प्योर ब्रीड होबो जदि पैरेंटल प्लांट न रहला सेटा इम्प्योर ब्रीड होबो आ जदि से प्योर को किमिति करे बाय रिपीटेड सेल्फिंग से जो सेल पैरेंट रिपीटेड सेल प्रोड्यूसर करी कोन उद्रा ना बुढाई आफ्टर माने बहुत बड़ा जनरेशन ए बड़ा सेल्फिंग करी ताकर प्योर प्लांट कर ताकि जोटा इम्प्योर वेराइटी आछो ताको छाटी बाहर कर दोछे इम्प्योर वेराइटी जो काढी पकड़ दोछे एवं केवल प्योर जो टॉल एंड ड्वार्फ माने केवल टॉल ड्वार्फ नहीं जाउछे ताकि जदि इंटरमीडिएट आछला ताको से रिजेक्ट करे तो बाय डूइंग दिस ही गेटिंग द सिलेक्शन माने प्योर ब्रीड पैरेंट प्लांट मिलला स्टेज 2 को बोलले स्टेज 2 बोले ना प्रोडक्शन ऑफ F1 plants that the production of F1 hybrids plants by cross pollination करते जो सेकंड स्टेज में बोलते ना देखा प्रथम कथा कहूँ कहला हम एग्जांपल दूली पढ़ती एटा प्योर लाइन एसला स्मॉल टू स्मॉल एटा प्योर लाइन एसला ए जेटा कोन एटा पी जनरेशन जेटा तो प्योर ये प्योर डोमिनेंट ये प्योर रिसेसिव होमोजेगस कंडीशंस दैट इज एक्जेक्टली होमोजेगस कंडीशन ऑफ प्लांट दैट इज सिलेक्शन ऑफ द प्योर ब्रीड प्लांट्स मतलब पहले फर्स्ट सेकंड स्टेज का मतलब प्रोडक्शन F1 प्लांट्स का प्रोडक्शन करे किमिति ना किमिति गला प्रथम गैमेट जेनेसिस ऑफ मेयोसिस हो आरो मेयोसिस हो नरे एटा हला फीमेल प्लांट एटा हला मेल प्लांट तो फीमेल प्लांट रो सार पढाई दिबे हम फीमेल प्लांट रो जेटा प्रोडक्ट दैट इज स्टामिना स्टामेन्स जो स्टामेन्स मध्ये तर स्टामेन्स माने एबा हो मोटाल प्रोजेक्ट देखै एबा दिबो एबा आसी एटू ओबिन तो उभार दिबो उभार एबा तो स्टॉप एबा दिस इज द स्टिग्मा एटा कथि स्टिग्मा इज स्टिकी सरफेस तो स्टिग्मा ऊपर जाई कर पोलन ग्रेन पड़िबो तण आर हला स्टिग्मा आर हला कोन पोलन ग्रेन्स कोन दिस द मेल गैमेट्स जो मेल गैमेट्स है दैट इज द पोलन ग्रेन्स पराग रेणु उड़िया कथि पराग रेणु तेनो कलम मेयोसिस सारा गैमेट्स फॉर्मेशन हो ये गैमेट ये गोटे वेराइटी गैमेट पर ये गोटे वेराइटी गैमेट्स फॉर्मेशन हो तापर कलम द बोथ गैमेट्स विल फ्यूज किमिति बाय द क्रॉस पोलिनेशन तापर कोन होला ना दे जैसे काम कला बेले पर एमिति तक कोन करथले ना तो ढाकी रखथले कोन हो ना आ गोटे प्लांट हो अनदर प्लांट हो माने ये जो ड्वार्फ वेराइटी टॉप तो टॉल वेराइटीज रो स्टिग्मा पर ड्वार्फ वेराइटी रो पोलन ग्रेन को आनी की पको अरे फाइनल पर्सन अरे पूरा बोटनी लेवल को पड़ा पूरा चासी लेवल को पड़ा है चासी लेवल पड़ा तुमे करू जो कामटा माने स्टिग्मा अछि गोटे धर दीटा में मंदार पूरा आगला दीटा मंदार पूरा ताके छोड़े देकी ता स्टिग्मा रो खबल ऊपर रखते स्टिग्मा रो जेटा स्टिकी मंदार जो टॉप ता स्टिकी तो ता ऊपर को पोलन ग्रेन पूरा जो झाड़ी दब देखियो पोलन ग्रेन तो जो तळ स्टिग्मा तळु बिथुबो माने इफर मंदार फुल देखियो मंदार फुल एबा दिबो एइटी किछि गुडे बिथुबो सेगुला देखो स्टामेन कन्दी स्टामेन इज द मेल पार्ट स्टामेन भीतर थाय तमरो पोलन ग्रेन्स
पोलन ग्रेन्स आर द स्टैमेन इज टोटल मेल स्ट्रक्चर्स और तार भीतर फॉर्मेशन होता है मेल गैमेट्स तो मेल गैमेट्स कोन पराग रे छोट छोट गुड़ी गुड़ी जो थिबो एना कि थिबा सेगला कोन पोलन ग्रेन्स तणु द्वार को गछर फ्लावर को पराग रे टाणी की पोलन ग्रेन्स टाणी की टॉल प्लांट रो स्टैमेन ऊपर पकेवा दरकार तणु दिस इज कॉल्ड जते गोटे प्लांट बा गोटे फूल आ गोटे फूल ऊपर जाई जति गोटे फूलर पराग रेणु अलगा गोटे फूलर जो स्टैमेन ऊपर जो पड़िबो दैट प्रोसेस क्रॉस पोलिनेशन दैट इज क्रॉस पोलिनेशन द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मैटिक सरफेस को द पोलिनेशन सेटा पोलिनेशन था सेटा को मौमाछी करू कोन से एनिमल करू बा एनिमल माने ह्यूमन निजे करू दैट इज द पोलिनेशन दैट इज कॉल्ड एजेड पोलिनेशन pollination but pollination is the transfer of the pollen grains from the stamen to the stigmatic surface of the plant মানে flower is called as the pollination the pollination two types cross pollination self pollination যদি নিজ pollen grain টা নিজ flower ର stigma ଉପରେ পড়ে that is called the self pollination but নিজ যদি গোটে flower ର pollen grain টা ଆଉ ଗୋଟେ flower ର stamen ଉପରେ ପড়ে that is called as the cross pollination that is maybe same belongs to the same plant or belongs to the different plant but in this case it belongs to different plant one is the dwarf plant and another tall plant हेई पारे सेम गछर दीटा डी अलग अलग फूल ऊपर कले क्रॉस पोलिनेशन हेई पारे गोटे प्लांट रो फूल आ गोटे प्लांट रो फूल ऊपर जाके पड़िबो दिस इज कॉल्ड दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ द क्रॉस पोलिनेशन ए केस रे कोन होबो ना द्वार गछर पोलिनेशन टा तल गछर स्टिग्मैटिक सरफेस जाके पड़िबो दिस इज एग्जांपल ऑफ क्रॉस पोलिनेशन तेणु क्रॉस पोलिनेशन करिकी मो क्रॉस पोलिनेशन केमिति करियो ना ता गोटे छोट छोट पॉलिथिन खोल आइबो ताको ढाकिबो रबर लगेई रखिबो जेमिति सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड द सेल्फ पोलिनेशन जेबि सेल्फ पोलिनेशन न होई पारिबो ताको ढाकी की रखिबे काले बोले पड़ जिबे काले बोले मोमच पड़ कर देबे तो ढाकी की रखिबे देखो हाउ माइन्यूटली डू थिंग्स तम जो फोर्स जो विशेष फोर्स धीरे की नहीं की ता पर पकेला केते काम करछन नॉट बिकम द फादर यू डू लॉट ऑफ वर्क्स आपने अपने कॉलेज के पास तो ताकि सेल्फली पूरा एकदम जीवित अलगा फूल न लागिबो धीरे कि नहीं तापर स्टिग्मैटिक सरफेस पकेल देन कहला द सेकंड स्टेज प्रोडक्शन ऑफ F1 हाइब्रिड प्लांट बाय क्रॉस पोलिनेशन करी कि F1 प्लांट प्रोड्यूस करे असला F1 प्लांट किमिति एटा हला तापर ताकू क्रॉस पोलिनेशन करे हैं देखो सुन में क्रॉस पोलिनेशन करे तो ये निसिला तार प्रोड्यूस करा क्रॉस करला परे तार स्टिग्मैटिक सरफेस पके देला परे तार पोलन ग्रेन को तापर तक फेर कवर कर दे फिर ताको जोड़ी देली तक कवर कर देला परे तापर फर्टिलाइजेशन पर तार सीड डेवलप हो फ्लावर धीरे धीरे उड़ी जीवो धीरे सीड डेवलप हो सीड हला तो सीड तक नहीं कि पाटरे पोतिले से तो जानि पर सीड तो जानि पर पूरा बड़ा नगे पूरा अडवार पे तक गछ नगे पड़े माटी नगे पड़े नगे प्लांट तक बड़ा होला कि छोटा होला जो जानि तो देखले जो प्लांट आसला this is F1 eta F1 hybrid by F1 generation F1 this is F1 hybrid or F1 and this F1 hybrid plant is F1 hybrid plant F1 hybrid plant but generation is F1 generation sorry F1 generation F means filial generation and offspring generation फर्स्ट फिलियल जनरेशन प्रथम फिलियल जनरेशन किमित प्रोडक्शन ऑब्जर्व माने पूरा डुबी जाता भीतर एक्सप्लोर टा किमित कले जे प्रथमे सेल्फी करी प्योर लाइन प्लांट आगे फाइंड आउट कले बुलाई परिश्रम कले तापर से माइन्यूटली फोर्सेप रे पोलन नै कि आगोडे प्लांट रो माने टॉल वाल प्लांट रो कवर रूट पोलन नै कि टॉल प्लांट रो स्टैमिना पर पकेले এবং তা कवर करे एवरी टाइम ता कवर काई दे एंश्योर दैट देयर शुड बी नो सेल्फ पोलिनेशन is not only cross pollination है चलो की होला ना ये पोलिनेटिंग एजेंट केला है मेंडल निजे हेले माने पोलिनेटिंग एजेंट के मेंडल को हाथ में मेंडल निजे पोलिनेटिंग एजेंट है हला क्रॉस पोलिनेशन ला फॉर्म प्लांट ला ना टॉल प्लांट ला बिकॉज़ द allele express F1 is dominant and fail to express this is the recessive हला stage 2 काम हेला this is gametogenesis এটা হলো তোমরা this fertilization the fertilization है
production of ना कहबा ना सेल्फिंग सेल्फ पोलिनेशन ता कहबा ना सेल्फिंग कहबा सेल्फ पोलिनेशन आल्सो कॉल्ड सेल्फिंग दैट्स व्हाट कॉल्ड सेल्फिंग और सेल्फिंग माने इवन सेल्फिंग होत माने निजर फोटो निजे दबा फ्रंट कैमरा एटा सेल्फिंग माने निजे निजे भितरे फर्टिलाइजेशन हवा दैट इज सेल्फिंग सेल्फ पोलिनेशन का सेल्फिंग हो and self pollination or selfing of F1 hybrids to produce F2 and F3 F2 and F3 generation कितने प्रोड्यूस हुआ by self pollination कितने देखो तीनटा स्टेज एक बुझियो ना फर्स्ट अंडरस्टैंड द थ्री स्टेप्स प्रथम सिलेक्शन ऑफ प्योर ब्रीड्स और प्योर लाइन प्लांट्स प्लांट बुझि गलो बाय रिपीटेड सेल्फिंग करी प्योर लाइन पाए होमोजाइगस कंडीशन ओनली होमोजाइगस नथिंग हेटेरोजाइगस तेणु तापर ताकर गैमेट्स फॉर्मेशन कला पर पोलन ग्रेन टा गुडेगी स्टिग्मेटिक सरफेस ऑफ द अनदर माने प्लांट रो फ्लावर ऊपर कले स्टिग्मेटिक सरफेस पकड़ा सो दैट दिस क्रॉस पोलिनेशन लीड्स टू F1 हाइब्रिड प्लांट बाय F1 जनरेशन आसे तो F1 जनरेशन आपको पर सेल्फिंग करियो सेल्फिंग किने करे देखो एठी जत्ते प्रकार प्लांट होबे ऑल प्लांट्स आर टीटी काहे लाइक जे देखो ये दी प्रकार ये जो वैरायटीज एमती करो और ये दीटा वैरायटी करो ये भी तो जितने प्रकार वैरायटी है सब गुलो ए वैरायटी किनी देखो ये सब गैमेट्स ना देखिए मतलब आज যদি दी प्रकार तो दीटा गैमेट्स आज तो दीटा गैमेट्स आपको आज तो क्रॉस करे 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 देखो कौन ये चार प्रकार का कंडीशन है परिबो पोलिनेशन ऑल द केस दिस हेटेरोजाइगस तो यदि केवल गोटी वेराइटीज रे ही प्लांट प्रोडक्शन अरे फाने पड़छ ना तो केवल गोटी वेराइटीज रो प्लांट है बिकॉज़ इट कैन प्रोड्यूस फोर चारटा दर एवरेज करा तो चारटा रो जितने प्रकार फॉर्मुलेशन कॉम्बिनेशन पकेबेगा फॉर्मुलेशन कॉम्बिनेशन पकेले ही केवल गोटी वेराइटीज रो प्लांट ही प्रोडक्ट आली है क्लियर आदि तो तापर से का बोले F1 प्लांट को पकेबे द सेल्फ पोलिनेशन करिवे बा सेल्फिंग करिवे सेल्फिंग तो देखो F1 जेतर प्लांट जो दिसबो देखो F1 हाइब्रिड दिसबो F1 हाइब्रिड है तो ये मेरे को करिबो मेयोसिस करिबो मेयोसिस का गैमेटोजेनेसिस गैमेटोजेनेसिस कला दी प्रकार गैमेट फॉर्म करबो किछि गैमेट ए भरा दिबो आ किछि गैमेट काई नहीं देखो F1 हाइब्रिड रे दी टाका आइली संगे ही अछन दे रिमेन टुगेदर बट दे सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सेट में मोनो हाइब्रिड टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आसीबो कोन गले ना बोथ द आइली रिमेन टुगेदर और sit together in the F1 hybrids के बच्चन संगे किंतु ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन तो बोथ आर really and separate from each other तो यदि जते these are gametes ये कौन होगा these are the gametes F1 gametes F1 gametes ये नहीं देखो F1 gametes में पोलन स्प्रेड फॉर्मेशन होला आउ एठी स्टैमेन रहला तेरो कोन करिबा सेम फ्लावर से सेम माने जो F1 पासला सेही रो सेल्फिंग का सेल्फ पोलिनेशन कराओ निज पोलन रो नै कि निज स्टिग्मा पर पका धरबेला सेठी कोन अलगा अलग क्रॉस पोलिनेशन करे एठी कोन सेही सेम फ्लावर जो फ्लावर असला सेम गछर फ्लावर ऊपर कोन सेम गछर केते प्रकार फ्लावर अछि निज माने पोलन रो कि निज स्टिग्मेटिक ऊपर पकाई कर सेक्शन कवर कर दिया कवर कोलाला सेल्फ माने कोन फोर्सेबल नै कि पके दे कवर कर दिया that is to ensure the selfing but self pollination ensure करा कला पर कोन होबो देखो एठी कोन दीटा वेराइटीज रो माने ये फॉर्मेशन लाइन नै
बड़ के छोटे छोटे मतलब टू वेराइटीज रो तुम्हारे गैमेट्स फॉर्म ताको वाला चेकर बोर्ड सिस्टम जो प्लांट्स आसीबो यू कैन अरेंज इट्स तमरे कोन हो एटा आ सब पटले करा एई पोलन ग्रैंड मतलब ये डाल में फीमेल এটালা এই পোলেন গ্রেনটা আর এই মানে টাইপ মানে জিন টাইপ কি হলো স্টিগমা पर পকা পকালে কোন দেব এগুলো ভ্যারাইটি অফ প্লান্ট হলো जो जाइगोट আছে এই ভ্যারাইটিটা আরটা যদি ক্রস করে হ্যাঁ এটা এই ভ্যারাইটিটা আর যদি করা স্মল বি और द ये कौन होला ये ला सब दैट F2 जनरेशन पेना एटा फर्टिलाइजर वाला द गैमेटोजेनेसिस एटा है फर्टिलाइजर एटा ला कौन होला F2 generation प्रोड्यूस होला राजी F2 plants नहीं F2 plant बसला तर कोण होला एटा ला कोण एटा फिनोटाइप देखला कोण होला टॉल आर फिनोटाइप टॉल आर फिनोटाइप टॉल आर फिनोटाइप टॉल काय की ना म्हणजे तो रिसेसिव्ह बायनरी एक्सप्रेस मूल्यने होमोजेनस कंडिशन होमोजेनस कंडिशन केवळ इंडिपेंडेंट आहे तो फिनोटाइप एक्सप्रेशन कोण होला इफ द फिनोटाइप रेशियो कोणाला ना टॉल के बताला तीनटा ड्वार्फ वाला गोटे टोटल प्लांट बरो ये चारटा वाला दादर तीनटा रेशियोटा केता वाला 3:1 मोनोफाइब्रेट रेशियो कर गोटे कंसीडर करते हैं तो कंसीडर करते तेणु जो थर्ड सेल्फिंग ऑफ F1 हाइब्रिड प्रोड्यूस F2 ने देता ताको ये जो प्लांट होगा ता भी सेल्फिंग करबा फिर नेक्स्ट आसो F3 जनरेशन ओके F3 जनरेशन आसो तो ये तीनटा मेथड से कौन तीनटा स्टेज है ताको एक्सप्लोर करवा और स्टेज 1 सिलेक्शन ऑफ प्योर ब्रीड और प्योर लाइन प्लांट्स सिलेक्शन करे माने होमोजेगस कंडीशन आसला ताको कोन गले ताको सेकंड स्टेज गले ताको गैमेटोजेनेसिस करके गैमेट्स फॉर्मेशन करे गैमेट्स फॉर्म ताको पोलिनेशन करेले क्रॉस पोलिनेशन करेले माने ड्वार्फ प्लांट रो फ्लावर ऊपर पोलन ग्रेन देकी टॉल प्लांट रो फ्लावर ऊपर स्टिग्मेटिक ऊपर माने क्रॉस पोलिनेशन करे दे प्रोड्यूस द F1 हाइब्रिड प्लांट्स तापर थर्ड स्टेज से F1 हाइब्रिड प्लांट्स ला जेते प्रोड्यूस होला ताको स्टार जो फ्लावर गुला को सेल्फिंग करेगी बा सेल्फ पोलिनेशन करेगी दे प्रोड्यूस द F2 जनरेशन प्रोड्यूस then this is the methods how the Mendel's Lewis works Mendel ताको वर्क करते Mendel कोन 1716 मसला 16 एडिशन देखने को मसला Mendel ने पार्टले थिले से प्रथम फिजिशियन बोटानी पढे भई गले तापर आसी जेतु बोटानी पढे जेड बोटानी पार्ट अछि जेनेटिक्स धीरे धीरे जेनेटिक्स कवर कले कम करी धीरे धीरे Mendel एवं ताकर सबसे इंटरेस्टिंग देखो माने केते बड़ दिनछ देखो देखो छाड़ा से माने केते इंटरेस्टिंग देखो से कोन करे ना ताको तो कामडा देले जो काम जाम गुड कर मोर रिसर्च कर जर्नल ते पब्लिकेशन करी सो दैट द वर्ल्ड द पीपल ऑफ वर्ल्ड शुड नो दैट व्हाट आई एम डूइंग वर्क तो जर्नल है तो सी जो जर्नल करथिले से जर्नल तो एक्सपेरिमेंट ऑन हाइब्रिड प्लांट्स माने हाइब्रिड प्लांट ऊपर माने एक्सपेरिमेंट माने कोन एक्सपेरिमेंट्स ऑन द ना हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट्स ही बिकॉज़ दे आर हाइब्रिड कोन ना दीटा डिफरेंट कैरेक्टर्स जो जगह असले ते कोन हाइब्रिड एटा प्योर ब्रीड दीज आर द प्योर ब्रीड्स एटा प्योर ब्रीड है प्योर ब्रीड इम्प्योर ब्रीड है सो दैट इम्प्योर ब्रीड इज कॉल्ड हाइब्रिड्स तो हाइब्रिड कोन होबो ना आर यूजुअल कैरेक्टर कमिंग टुगेदर इन द हाइब्रिड रे आर अनयूजुअल कैरेक्टर दा डिमिनिश कर दियो सो दैट हाइब्रिड रे कोन होबो सदा भलो भलो कैरेक्टर आसी कि तो प्लांट रो क्वालिटीज ता बढ़ियो दैट इंक्रीज इन द क्वालिटीज इज कॉल्ड द माने दैट इज कॉल्ड द हाइब्रिड विगोरिटी माने विगोर ता बढ़िला तो हाइब्रिड विगोरिटी कोन कोडा
इज इंक्रीज इन कैरेक्टर क्वालिटी तो कैरेक्टर क्वालिटी जो बढ़िला ताकि माने हाइब्रिड विगोरिटी कहते एंड दिस प्लांट इज कॉल्ड द हाइब्रिड प्लांट तो ये एक्सपेरिमेंट कौन हाइब्रिडाइजेशन दिस प्रोसेस जो प्रोसेस है हाइब्रिड फॉर्मेशन द प्रोसेस बाय व्हिच द हाइब्रिड प्लांट इज फॉर्म दैट प्रोसेस कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन तो ये कौन कहले ना हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन द प्लांट्स ताको जो जर्नल जो टॉपिक ना कहला ना हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन द प्लांट्स माने के ऊपर से हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट वाले तो द जर्नल जो टॉपिक था तमरो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन द पाइलम सैटिवम और पी प्लांट बा प्लांट्स सिंपल प्लांट्स कहले तापर से जर्नल करे तो मो टॉपिक वाला या तो मो टॉपिक को टाडपोल ऊपर काम करू कि मो पुलिस माइक्रो ऊपर काम करू तो तार टॉपिक को देली कि से जर्नल देखो प्रोसीडिंग ऑफ अमेरिकन प्रोसीडिंग ऑफ जर्नल्स बा ब्रिटेन प्रोसीडिंग जर्नल सब विभिन्न अछि तो कोन होबा सेटा एनुअल प्रोसीडिंग्स मतलब प्रत्येक एनुअल माने प्रत्येक वर्ष रे गोटे जर्नल आसे गोटे पर्टिकुलर जर्नल लो गोटे बर्न जो जगह से रहउथिले बर्न जो जगह सोसाइटी रो से जो कोन बर्न सोसाइटी रो गोटे एनुअल प्रोसीडिंग बाहरला प्रत्येक मास प्रत्येक वर्ष गोटे जर्नल बाहरला कॉलेज मैगजीन बारे गोटे मैगजीन बाहरला से मैगजीन रे ये एनुअल प्रोसीडिंग रे ये तार रिसर्च पब्लिकेशन को छापले तो सेतबेला कोन करले ताके वार्क टॉपिक जानि पाइले 1963 मसिया 1963 ना हां 1963 ना 1965 रे कमाने करले 1965 रे डिस्कवर करले माने एटा एनुअल प्रोसीडिंग करे बाहर करले 1965 मसिया तापर 1986 ना 84 रे ना 86 तो तापर कोन कला ना से जानवर क्वेश्चन बाहर करले किंतु सेते बेले वर्ल्ड कोन कला माने डार्विन गोटे बिग फिगर छले डार्विन गोटे लंडन डिटेल नथिले गोटे बिग टॉल फिगर छले डार्विन और डार्विन को कंटीन्यूअस वेरिएशन इवोल्यूशन मतलब कंटीन्यूअस वेरिएशन नेचुरल सिलेक्शन जो देते जोड़े कंटीन्यूअस वेरिएशन कांसेप्ट करते तो ये जो माने कथा कहले ताकि के जानि पारे ताकि प्रोसीडिंग जाउ पथवाला गोटे छोटिया जगह रे से बाहर करे वर्ल्ड में जो बड़ा जर्नल बाहर करे छोटे जर्नल बाहर करे सेट पे ताको वर्ल्ड को रिकॉग्नाइज के कर पाए किंतु आफ्टर 34 इयर्स 34 और 36 इयर्स आफ्टर 34 इयर्स पर तीन जन डिफरेंट साइंटिस्ट ताको इंडिविजुअली ओगोडिफेरिक्स हां कार्बोफोरेक्स आउ जने हां तीन जन डिफरेंट साइड एक्जेक्टली तीन जन डिफरेंट साइंटिस्ट को गले ताको अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग एक्सपेरिमेंट फाइंड आउट करे तो देखिले आमे जोटा फाइंड आउट करजु ऑलरेडी सेटा 34 वर्ष पूर्व से काम होई छै और ताको फेरे तारी 2001 बोले 2000 सॉरी 2001 1901 मसिया रे से माने ए तीन जन साइंटिस्ट डिफरेंट जण हेले ऑस्ट्रिया रो आ जण जर्मन रो आ जण पोलैंड रो तीन जन साइंटिस्ट डिफरेंटली इंडिविजुअल सब फाइंड आउट करे सिंगल मिसी करे इंडिविजुअल फाइंड आउट करे वो परे देखिले पढिला पर देखिले अरे भाई ये काम तो ऑलरेडी 34 प्रूव है सर এবং তারপর যাই মেন্ডেল को রিকগনাইজ করা ভাই यार এটা বড় কাম করে এটা জানি পান না তারপর মেন্ডেল গট ইটস রিকগনাইজ ও পাই ও পারি তো